Good morning to all of you. Today I am taking your science class, chapter 18, waste water management. Today we will learning about the what is the source of the waste water and how it treats. So let's start. Source of the waste water. Waste water that has been used and has become dirty, it's called a waste water. जो वाटर यूज हुआ होता है और जो डर्टी वाटर होता है वो वेस्ट वाटर कहलाता है. डिफरेंट टाइप ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ द अदर एक्टिविटीज contaminated the water and generate forming the waste water, like as agriculture activities. In the agriculture fields, agriculture activities produce the waste water. Different types of the chemicals, biopesticides, biocides and animal wastes form the waste water. Construction of the buildings, huge of water used in the construction of the buildings, and these water generated to the waste waters. Industries waste water. In this phenomena of the industries waste water, different types of the industries like as dye are makings, where paints are making. These industries use a lot of waters, and when the release of the waters and form a waste water, because different types of chemicals are added to in this waters, so it is called the industries waste water. Hospitals, hostels and the domestics waste are generated to the domestic waste waters. And the mining wastewater is when the operations of the minings water are used and this water is contaminated, and so this water is called a mining wastewaters. All of the numerous activities to produce the wastewaters. So in this wastewaters, different type of the particles are present. This is called a suspended impurities. This is called a suspended impurities because different type of the chemicals, different type of the waste materials with different type of the small particles are present in this wastewater, so it is called the suspended impurities. This wastewater containing suspended impurities is called a sewage, और इसी suspended impurities को क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं. These impurities are called contaminants, और ये impurities क्या कहलाती हैं? Contaminants कहलाती हैं. ठीक है. Where does domestic wastewater go? Domestic wastewater is formed when different types of the human activities do in day-to-day life, like as washing fruits, washing vegetables, washing clothes, bathing, and different type of other activities contaminated out the waters and form the domestic waste waters. The sewer systems, channel systems of the pipelines used to carry sewage is called the sewer systems. In these systems use the pipelines and carry the sewage, your domestic waters, and this is called the sewer systems. Different type of large cities use the municipal sewage waste waters. They are use the pipelines, collect the wastewater from the houses, and this wastewater release in a big safety tank in situated in the cities, and these safety tanks release the all wastewater to the wastewater treatment plants. What is wastewater treatment plant? Wastewater treatment plant, a facility that treats wastewater from the domestic as well as industries wastewater. ऐसे प्लांट्स जहाँ पे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज दोनों टाइप के वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहलाते हैं. दिस प्लांट, इन दिस प्लांट
involves 3 steps where the waste water are treated. इस प्लांट में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी स्टेप, सेकंड इज सेकेंडरी स्टेप्स एंड थर्ड इज टर्शियरी स्टेप्स. प्राइमरी स्टेप इज कंप्लीटली मैकेनिकल स्टेप्स. प्राइमरी जो स्टेप्स होता है वो कंप्लीटली मैकेनिकल स्टेप्स होता है. यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ पे लगा के जो जितना भी सीवेज वाटर होता है, जितना भी डोमेस्टिक वाटर होता है या जो इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड से निकलता है उसको लगा के कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने पे क्या होता है कि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, जो लाइट इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो राइज अप हो जाती हैं और जो हैवियर इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती है. इसके बाद उस वेस्ट जो इम्प्योरिटीज होती है, जो लाइट इम्प्योरिटीज होती है उनको रिमूव कर लेते हैं और इसके बाद जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है वो पैलेट पे सेटल डाउन हो जाती है. पैलेट पे सेटल डाउन होने के बाद जो वेस्ट वाटर बचता है उसको सेकेंड स्टेप पे रिलीज कर दिया जाता है. सेकेंड स्टेप में जैसे ही रिलीज करते हैं तो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं. ठीक है, और जो चैम्बर होते हैं तो उस वाटर में और भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे सैंड होती है, ग्रिट होती है, पेबल्स वगैरह होती हैं. तो सेकंड चैम्बर्स में ये भी सब क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है. थर्ड चैम्बर में क्या होता है कि थर्ड चैम्बर में जो लाइट और भी लाइट इम्प्योरिटीज होती है, जैसे ऑयल्स के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. तो ऐसे और जो ह्यूमंस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी लाइट होता है. ठीक है, तो ये क्या होती है, वेट में लाइट होने की वजह से ये सेडिमेंटेशन टैंक में क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज अप हो जाती है और जो भी अदर्स हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. देन सेटल डाउन होने के बाद इस वेस्ट वाटर को क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टेप के लिए ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया जाता है. वहाँ पे सेकेंडरी स्टेप से टोटली बायोलॉजिकल स्टेप होता है. वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एज अ फूड मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं. ठीक है, जिससे होता क्या है कि जो वाटर होता है वो थोड़ा सा क्लीन अप होता है. ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो सेटल डाउन हो जाती है. टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट इज अ टोटली केमिकली बेस्ड प्लांट. ऑलरेडी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो टैंक में सेटल डाउन हो गया था. सिर्फ बचा हुआ क्या था, जो हमारा वाटर था, उस वाटर पे क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे वाटर्स में और भी जो इम्प्योरिटीज होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं. जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती है उसको वहाँ तक लेकर के जाते हैं. ठीक है, उससे ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है और भी जो इम्प्योरिटी होती है वो किल हो जाती है. अब जो ये वेस्ट वाटर होता है वो डिफरेंट टाइप के पर्पज़ में यूज होता है, लाइक एज ए इरीगेशन में यूज होता है, ड्रिंकिंग वाटर में यूज होता है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाने में इसका यूज होता है. व्हाट हैपेंस टू द ट्रीटेड वाटर, वही है कि जो भी ट्रीटेड वाटर होता है उसका इसी सब चीज़ों में क्या होता है, यूज होता है. ठीक है, व्हाट हैपेंस द स्लज. अब जो वेस्ट मटेरियल्स जो बच रहा है, जो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था, प्राइमरी स्टेप था, वहाँ पे भी बच रहा था, सेकेंडरी स्टेप में भी आ गया था और टर्सरी स्टेप्स में भी जो वेस्ट मटेरियल था उसको स्लज बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द वेस्ट मटेरियल्स. इसका जो यूज होता है, इसका यूज क्या करते हैं कि जो एसिड्स बनाने में, जो राख बनाने में यूज होता है. ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होता है उसको वहाँ पे यूज करते हैं और जो कंपोस्टिंग होती है, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनते हैं, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनते हैं, वहाँ पे भी इस वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफ द सीवेज जनरेशन. मोस्टली होता क्या है कि हम जो अनवांटेड वर्क होते हैं उसमें भी क्या करते हैं कि सीवेज जो वाटर होता है उसको जनरेट करते रहते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए सीवेज वाटर जनरेशन में, लाइक एज यूज लाइट फ्लैशेस इन अवर वॉशरूम्स. हमें अपने वॉशरूम में जो लाइट फ्लैश होते हैं, ठीक है, उनको यूज करना चाहिए. ठीक है, एक्सेस कुकिंग ऑयल, बटर, मीट, फीड बटर और मीट फैट्स एंड द प्लास्टिक शुड बी डिस्पोज इन द डस्टबिन. जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं उनको हमें डस्टबिन पे हमें डिस्पोज कर देना चाहिए, उन्हें हमें ड्रेन्स पे नहीं डालना चाहिए. ठीक है, फिक्स लीकेज इन सीवर पाइप्स. जो सीवर पाइप्स होते हैं जो आप लीकेज करते हैं उनको फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ये सीवर पाइप्स अंडरग्राउंड होते हैं और वहीं से क्या होता है
कि जो वाटर पाइपलाइन होती है वो भी आती है, जिससे क्या कर देते हैं उस वाटर पाइपलाइन को कंटामिनेटेड कर देते हैं और जो घर होते हैं वहाँ तक क्या होता है एक तरह से पॉल्यूटेड वाटर पहुँचता है और डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती है वो कॉज होती है। ठीक है, अब आते हैं कि जो ये ट्रीटमेंट प्लांट है वो एक तरह से जो लार्ज सिटीज़ हैं, जो महानगर वगैरह हैं, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, बेंगलुरु हुआ, तो यहाँ पे ये ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। पर जो हमारे विलेजेस होते हैं, हमारे अर्बन एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या हम कोई ऐसा और भी मेथड है, ठीक है, जो अल्टरनेटिव इसके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 मेथड्स होते हैं जिसको अल्टरनेटिव के फॉर्म पे हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेफ्टी टैंक्स। सेफ्टी टैंक्स एक अंडरग्राउंड टैंक होता है जहाँ पे जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, ये अर्बन एरिया में क्रिएट होते हैं, बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक होता है। तो जितना भी हमारा वाटर होता है, जो डोमेस्टिक वाटर होता है, वो जाके इस टैंक में क्या होता है स्टोर होता है। इस टैंक में स्टोर होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया इस वाटर पे, इस वेस्ट प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं, उसको क्या करते हैं डिग्रेडेट करते हैं, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं और इस टैंक का यूज़ क्या करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम जो वेस्ट वाटर है उसका एक प्रॉपर प्लेस पे कलेक्शन कर सकें और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो सकें और जो वाटर का लेवल भी है वो क्या है, वो धीरे धीरे इसी वाटर से क्या होगा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाता है। फिर आते हैं बायोगैस प्लांट्स। बायोगैस प्लांट्स जो है ये इसमें भी क्या कर देता है, वेस्ट वाटर को डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसमें जो वेस्ट वाटर में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को, ठीक है, और स्पेशली जो है फॉस्फोरस जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इस बायोगैस का यूज जो होता है वो कुकिंग के लिए यूज होता है, लाइटिंग के लिए यूज होता है और ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस गैस का क्या होता है यूज होता है। ठीक है, वर्मिंग कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, जो अल्टरनेटिव मेथड्स इस समय यूज हो रहा है वो वर्मिंग कंपोस्टिंग टॉयलेट्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं, उसको ला करके एक प्लेस पे कलेक्ट करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, जो अर्थवॉर्म या रेडवॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर रिलीज कर दिए जाते हैं। वो इस वेस्ट प्रोडक्ट को एज अ फूड यूज करते हैं और उससे क्या करते हैं, वो रेडवॉर्म्स या अर्थवॉर्म जो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं और उससे क्या होता है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और उसका यूज़ क्या होता है, ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। The improper management of the sewage. Improper management of the sewage means कि अगर जो सीवेज ट्रीटमेंट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लाइक सीवेज जो पाइप्स हैं अगर वो कहीं से लीकेज हैं, ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड होती हैं, वाटर पाइपलाइंस भी अंडरग्राउंड होती हैं, तो पर्टिकुलरली उस वाटर पाइपलाइन को क्या कर देती हैं या उसमें फ्लो होने वाले वाटर को एक कंटामिनेट करती है, जिससे क्या होती है कि एक लार्ज अमाउंट में जो डिजीज कॉज होती हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे उस वाटर की सप्लाई होती है वहाँ पे एक डिजीज कॉज कर देती है और एक लार्ज पॉपुलेशन को वो क्या कर लेती है, अफेक्टेड कर देती है। ठीक है, सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस, गवर्नमेंट अवेयर है सैनिटेशन के लिए पब्लिक जो प्लेसेस होते हैं लाइक एज एयरपोर्ट्स होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टॉप होते हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, तो सैनिटेशन के लिए एक प्रॉपर जो है पब्लिक प्लेसेस में सैनिटेशन के लिए होना चाहिए। लाइक एज जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होते हैं वो क्लीननेस का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो वहाँ पे डस्टबिन्स वगैरह होती हैं उनका प्रॉपर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वॉशरूम्स वगैरह होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन ये एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्या है इस अपने प्लेस को जहाँ पे रहते हैं, अपने देश को भी क्या करना है, क्लीन रखना है, जिससे क्या होगी, इनका एक जो मेजर इफेक्ट ये पड़ता है कि जो डिजीजेज होती हैं, ठीक है, वो कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है, और जब डिजीज कंट्रोल में रहेंगी तो हम लोग क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था ये फिनिश हो गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।